Okay. If you can see this, here I have just enabled a paper trade mode right now. I can make it a real trade also. This works right now only with Zerodha. Soon in the future, we will be doing with other places. If you look at this, it automatically takes the input and it will be able to decide. वो decide करेगा अपने आप कि कहाँ पर trade बन सकती है. If you see here, यहाँ पर all the indices, अब देखो this is Bank Nifty, Nifty, Finance Nifty and Mid Cap Nifty. Everything has actually, it has taken a buy here, and this is the price at which it has bought. And we have enabled the trailing stop loss, so it will trail the stop loss also. You can see here it is active, and here currently, can you see at this place, Bank Nifty, it took a buy trade for put also right now. Just now it took the trade for okay, I have actually configured it for, yesterday I had configured it based on the, okay, sorry, in case of, okay, in case of Nifty, it has actually come, okay, it went again. So there is some fluctuations which is happening right now. So if you see, I had enabled, okay, the enablement itself is wrong here. Let me do one thing. I'll change this because this is based on yesterday thing I had put. So let me put here as 19,700 and here 19,900. I'll change this, and right now let me remove all these things. Let me remove this. Okay. So it will, if you see here, it is automatically taking buy here has happened only in case of Finance Nifty. There is a buy in both Nifty as sorry, Finance Nifty in call and put, both it has actually taken a buy. If it closes, it will say that it is closed the trade also here. Okay. So here this is fine. Bank Nifty probably we can take a, okay, I've just changed it. You can see that the input will also change here. Okay. Let me do one thing. एक मिनट ठहरिए, यहाँ पर let me, को भी थोड़ा सा हटा देता हूँ. So it will show you here, you can see the live P&L here. आप देख रहे हो ना, live P&L यहाँ पर दिख रहा है. Will we need to change which script to trade? Ha, you can change the script. Currently I have actually enabled only for indices. We can do it for even stocks. We can do it even for what do you say, we can do it for even commodity, everything we can do it. Okay, right now if you see here, there is a loss in case of mid cap Nifty, but still all the things are active. If you see here, all these things are active, that means that it is still operational. But if you look at the buy which had come earlier has gone here. Okay, it had come, it has gone here. So there is some fluctuations which are happening here. Okay, let me remove this. I think this was based on the previous one, because afterwards it will not take the trade. Okay. And if you see here, the stop loss also, we have actually enabled the trailing stop loss. So it is automatically going to update that stop loss also.
So initial stop loss was 648. Right now the stop loss is 671. You can see it is automatically taking. The Zerodha account which I have actually enabled right now, I have kept a very small amount because we are just testing this. Okay, look at this. The profit has actually vanished out of it. So there is a danger. It always happens because in the initial hours, you know, the moment what happens. Okay. Look at this Bank Nifty. Sorry, not Bank Nifty. Nifty. Okay, okay. This was active, right? I made a mistake. Okay. Bank. In case of Nifty, it has taken to trade Nifty and Finance Nifty. It has taken trade in both put as well as call. And if you look at Bank Nifty, it has taken uh, in case of call only, and in case of mid cap Nifty also, it has taken only. In case of mid cap Nifty also, it has taken probably. No, it has not taken. Mid cap Nifty, it has not taken. Okay, here you can see the entry. Where is it? Entry done. You can see here the entry is done here. It has done in both the places. It has done in both the. Okay, it has done in all other places. It has done except Bank Nifty. Everywhere it has taken trade both in put as well as call. So one of them will hit the stop loss, and the other one will actually start doing fine. So let us see what it will do. So the biggest advantage here is see what happens here. If put is in buy and call is in sell, in that case only this gets enabled. Otherwise it won't get enabled. So I have actually मैंने क्या किया है, अगर एक प्रॉफिट में एक एक्चुअली बाई में रहता है, एक सेल में रहता है, तभी ये एनेबल होता है. कभी कभी एनेबल हो जाता है बिकॉज algo is like that only. You cannot stop it because कोई भी जो हमारा क्राइटेरिया रहता है उसके हिसाब से चल जाता है, तो it will start activating. Many times हम क्या करते हैं ना, we are just holding on to situations, हम actually expect करते रहते हैं. यहाँ पर वो सब नहीं होता है. It will automatically take decisions immediately. It happens in seconds. मैं आपको एक ट्रेड अगर क्लोज हो जाता है, एग्जिट हो जाता है, आई विल शो यू. द मेन एडवांटेज इज आपका स्टॉप लॉस जो है बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, एंड स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली जब एनेबल हो जाता है, इट विल ऑटोमेटिकली गेट ट्रिगर्ड. इट इज नॉट नेसेसरी आपको सारा चीजें करनी है. whichever you want to do, only that you can work on. बट यहाँ पर मैंने सारा जो इंडिसेस है ना सबके लिए दे दिया है. एट ए टाइम आप 4 चीज को मॉनिटर कर सकते हो. एंड दिस इज प्योरली फॉर ऑप्शन बाइंग. ऑप्शन सेलिंग के लिए अलग सा मॉड्यूल है. खाली यहाँ पर क्या होगा, आप खाली बाई सिग्नल देख रहे हो ना, वहां पर खाली सेल सिग्नल रहेगा. देखिए लॉस में चला गया, प्रॉफिट में था, लॉस में चला गया है, बट अभी भी यहाँ पर बाई नहीं आया है. यू कैन सी बाई अभी भी नहीं आया है फॉर पुट. जब वो आ जाएगा
तो वहां पर ऑटोमेटिकली ये ले लेगा, इट इज गोइंग टू ऑटोमेटिकली ट्रिगर। यहाँ पर लॉस बढ़ रहा है, आप देख रहे हो, बट हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है। हाउ मच इज टारगेट फॉर बैंक निफ्टी? No, it is not about the profit. देखिए, the here if you don't want, you can actually put target and you can have a different parameter for that. But यहाँ पर what we are seeing is we are just going to trail the stop losses. हम trailing the stop losses देख रहे हैं। अगर आपको उसके हिसाब से देखना है तो देखिए, let me show you this. This is what we have done with yesterday. कल के लिए देखिए, ये हमने ट्रेड किया था पहले। ये जो कॉल है वो लॉस में एग्जिट हो गया, एंड यू कैन सी हमने 2-3 बार यहाँ पर एंट्री लिया है, तीनों बार यहाँ पर प्रॉफिट में आया है बिकॉज ऑफ ट्रेलिंग। हम ट्रेल कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्रेल हो रहा है, लॉस भी होगा, ठीक है, वी शुड बी एबल टू टेक दैट लॉस। अगर नहीं है तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। देखिए फिर से प्रॉफिट में आ गया बिकॉज दिस इज स्टिल नॉट कम इन टू बाई। देखिए दोनों आ गया है तो कोई ना कोई तो एक चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा। अभी यहाँ पर खाली बाई है, देन व्हाई शुड आई अननेसेसरली बुक प्रॉफिट? अगर प्रॉफिट ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, नोबडी नोज नो मार्केट कहाँ पर जाएगा। देखिए फिर से प्रॉफिट में आ गया, आपको डर लगता है तो निकाल दो। यू कैन एनेबल हियर। देखिए यहाँ पर एग्जिट सिग्नल फॉल्स है ना, बिकॉज ऑफ कंडीशंस है। ये अगर यहाँ पर जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है यहाँ पर आ जाता है, देन इट विल ऑटोमेटिकली गेट एग्जिटेड। नहीं होता है तब तक एग्जिट नहीं करेगा ये। यू वांट टू एग्जिट, यू कैन एग्जिट, बिकॉज आज देखिए यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है 671 पर है एंड वी आर एट 735। आपको डर लगता है तो आपको एग्जिट करना है, यू कैन डू दैट। आप चाहिए तो यहाँ पर ट्रेलिंग को डिसेबल कर दो और स्टॉप लॉस को चेंज कर दो, तो वहां पर वो एग्जिट हो जाएगा। वरना ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में यू कैन रिमूव दैट ऑल्सो। राइट नाउ आई हैव जस्ट enabled द पेपर ट्रेड मोड, हम रियल ट्रेड भी कर सकते हैं। हाँ, नंबर ऑफ लॉट्स कैन बी डिफाइंड। आई हैव एक्चुअली देखिए, आई वुड सजेस्ट डोंट डू मोर देन 1 or 2 लॉट्स। अभी के लिए हम टेस्टिंग ही कर रहे हैं। वी स्टिल वांट टू इंश्योर दैट ये सब कुछ ठीक ठाक काम करेगा, एंड प्रिफरेबली ऑप्शन बाइंग में 2-3 लॉट 4 लॉट से ज्यादा मत करो, क्योंकि क्या होता है कि कभी कुछ गड़बड़ होगा तो बहुत बड़ा लॉस होगा। ऑप्शन सेलिंग में आप जितना चाहिए मर्जी कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग में इट इज बेटर नॉट टू एक्चुअली अननेसली टेक रिस्क। यू नो वेरी वेल, जब ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम है तभी पैसा बनेगा, मोमेंटम नहीं है तो पैसा नहीं बनेगा। देखिए अभी भी बैंक निफ्टी में पुट के लिए बाइंग नहीं आया है। दिस इज द ओनली प्लेस आई थिंक इट हैज नॉट गॉट ट्रिगर्ड, बाकी सबका एंट्री ट्रिगर हुआ है। फिर भी ठीक है, हो सकता है कि लॉस में जाए। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड देन यू हैव टू एग्जिट। देखिए अभी होगा, कैन यू सी हियर, राइट नाउ इट गॉट ट्रिगर्ड, सी हाउ फास्ट इट विल गेट ट्रिगर्ड। यहाँ दोनों, व्हेन दिस हैपेंस, देखिए फिर से यहाँ पर चला गया है, एक बार ट्रिगर हुआ चला गया है, बट ट्रिगर हो गया तो एंट्री ले लिया है, एंट्री तो आ चुका है कि फिर से आ गया।
तो ओवरऑल अभी ठीक है, एज लॉन्ग यहाँ पर बाई का सिग्नल जारी है, ठीक रहता है। अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ पर अभी भी जो प्राइस है उसके ऊपर एक्चुअली जा रहा है, नहीं आ रहा है, जा रहा है, नहीं आ रहा है, सो देर इज सम चैलेंज। एक बार यहाँ पर दोनों में आ जाता है, एक ना एक को स्टॉप लॉस ट्रिगर होना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लॉस हो रहा है तो बेटर है एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि ये तो ट्रिगर होगा। गेटिंग इट, ये ट्रिगर होगा, लॉस होगा, बड़ा होगा। अगर नहीं चाहिए तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर ट्रिगर करा देना है एंड एग्जिट करना है। आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, आई विल लीव एवरीथिंग फॉर द ऑलगो टू डू ऑन इट्स ओन। जो भी वो करेगा आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। देखिए अगर आपको लगता है आपको खाली पुट में ही करना है, तो यहाँ पर खाली क्या करना है, एनी ऑफ दीज थिंग्स आप यहाँ पर आप निकाल दोगे, फॉर एग्जांपल क्वांटिटी निकाल दोगे, या यहाँ पर जो एंट्री सिग्नल है ट्रू मार्केट करके है ना, इसको निकाल दोगे। एनी ऑफ दीज थिंग्स यू हैव रिमूव्ड नो, वो यहाँ पर ये आएगा भी तो वो ट्रिगर नहीं करेगा। अभी के लिए तो ट्रिगर हो चुका है, तो विल जस्ट कीप इट एज इट इज। जो हुआ है हम उसको खाली देखते रहेंगे क्या होगा। देखिए हियर यू नो वेरी वेल व्हाट इज योर रिस्क। लॉस भी होगा, कितना लॉस होगा आपको पता है, तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, करना है नहीं करना है, एग्जिट करना है, यू कैन टेक ए डिसीजन। मैं जब ट्रेड करता हूँ ना, ये निकाल भी दूंगा। अगर मुझे कॉल में नहीं जाना है ना, आई विल रिमूव सम थिंग्स। क्योंकि मैं आपको बार बार बता भी रहा हूँ, यूट्यूब में भी बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी ही वीक है। इफ एट ऑल मार्केट नीचे जाएगा तो वो बैंक निफ्टी के वजह से ही जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पर पुट में प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया है, कॉल में प्रॉफिट नहीं आ रहा है, बट फिर भी ओके। देखिए यहाँ पर दोनों क्लोज हो चुका है। अगर मुझे इनेबल करना है ना, मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, दोनों का देखो, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लोज हो चुका है। एक काम करता हूँ, इसको मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दिस फॉर माय रेफरेंस। ये क्लोज हो चुका है। अगर मुझे, देखिए अभी भी बाई है, यहाँ पर भी बाई है, तो अभी मैं थोड़ा वेट करूंगा, क्योंकि दोनों में बाई आ रहा है, सेल आ रहा है, बाई आ रहा है, सेल आ रहा है। बट अगर किसी में लॉस हुआ है, किसी में प्रॉफिट हुआ है, तो प्रिफरेबली हमको वहां पर जाना चाहिए जहां पर प्रॉफिट हो रहा है। बट अभी के लिए थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखिए बाई सेल फिर भी हो रहा है, देखिए यहाँ पर फिर भी बाई आ रहा है, निकल रहा है। एंड यहाँ पर देखो लॉस ऑलमोस्ट 2000 के आसपास था, फिर से 1000 के आसपास आ गया, है ना। तो अभी भी कुछ क्लियर नहीं है, तो वेट करते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर वी कैन रिमूव द थिंग्स। हम इसको निकाल देंगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ऑटोमेटिकली फिर से एक्चुअली ये पोजीशन ले लेगा। और ये भी लॉस भी हुआ है, ये भी क्लोज हो चुका है, मैं इसको भी रिकॉर्ड करता हूँ। ये दोनों क्लोज हो चुके हैं। तो यहाँ पर डालना तो मुझे, ठीक है। तो
ये उल्टा हुआ है। ठीक है, ये हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया है। देखते हैं फिर से कहाँ पर। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो। ओके, देखिए यहाँ पर फिर से बाइंग निकल गया। तो अगर मुझे इसको कुछ नहीं करना है तो मैं इसको कुछ नहीं करता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर लेना है तो व्हाट आई विल डू इज आई विल रिमूव, ये एंट्री को निकालना है, एग्जिट को भी निकालना है। ठीक है, और मुझे ये सारा चीजें निकालना है, तभी यहाँ पर फिर से एंट्री होगा। देखो मैं इसको निकाल रहा हूँ, यू विल सी अ न्यू एंट्री विच विल बी टेकन। आप देख रहे हो, नया एंट्री है, एक्टिव हो गया है। मैं चाहे तो इसको एग्जिट भी कर सकता हूँ, बट अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप ऐसे भी छोड़ दोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्ट किया है, शुरुआत किया है, तो एग्जिट कर दोगे, तो दिस इज व्हाट वुड हैव हैपन। यू हैव स्टार्टेड एंड आपने अपना काम पर चले गए, तो निफ्टी में आपको क्या होता, 192 का प्रॉफिट है, वो 313 का लॉस है। तो नेट जो है 100 रुपीज का लॉस हुआ होगा। बस इनिशियल आवर्स में आप करोगे तो वही होता है। यू कैन सी मिड कैप निफ्टी में कुछ भी नहीं हो रहा है। सो वॉल्यूम्स बहुत कम होता है मिड कैप निफ्टी में। यू कैन सी हियर, आपको फाइनेंस निफ्टी में भी प्रॉफिट आपको पुट में ही आ रहा है। हमारा एग्जिट जो हुआ था वहां पर भी पुट में प्रॉफिट है। गेटिंग इट? सी, हम बहुत बार बायास्ड हो जाते हैं, तो बायास से कुछ नहीं होता है। तो बायास नहीं करके वी कैन स्टे, एंड जो भी मार्केट बताता है वी कैन जस्ट लुक एट व्हाट द मार्केट वांट्स टू डू। I hope all of you are able to see, right? Okay. देखो ये फिर से लॉस से निकल के फिर से ऑलमोस्ट आ गए। अब यू वांट टू एग्जिट, आपको यहाँ पर डर लग रहा है तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। बट यहाँ पर भी कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट ये थम चुका है। ओके, यहाँ पर ये क्लोज हो गया, आप देखो, कैन यू सी हियर, ये फाइनेंस निफ्टी क्लोज हो चुका है। तो मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ। मैं यहाँ से यहाँ लेना है। अभी भी कॉल वाला हिस्सा क्लोज नहीं हुआ है, तो आई एम जस्ट लिविंग इट एज इट इज। देखते हैं क्या होता है फाइनेंस निफ्टी में। ओके, लेट अस लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन द चार्ट में भी देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, एक अच्छा सा सेलिंग हो गया है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में कुछ खास नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि 500 के ऊपर है। 500 से नीचे ही यहाँ पर सेलिंग आएगी।
जब तक 500 है तो होल्ड करने का चांसेस है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि सेलिंग आया है। ओके, देख लेते हैं। एज ऑफ नाउ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। देखो क्या हो रहा है कि कॉल में थोड़ा बहुत एक्चुअली फिर से प्रॉफिट में आ गया। देखो अभी भी हमारा एक्टिव ही है, क्लोज नहीं हुआ है। कैन यू सी हियर? नाउ इफ यू वांट यू कैन एग्जिट आल्सो। प्रॉफिट में भी आया है। देखो यहाँ पर लॉस भी बड़ा नहीं है, लॉस यहाँ पर इतना ही है, इट इज नॉट एक्चुअली चेंजिंग। देखो यहाँ पर प्रॉफिट में आ गया। एंड लुक एट दिस, कैन यू सी दैट स्टॉप लॉस हैज एक्चुअली इम्प्रूव्ड, 691 पर आ गया है। ठीक है, देखो 709 पर स्टॉप लॉस आ गया, 732 पर हमने एक्चुअली लिया हुआ है। तो अगर 20 रुपए का लॉस हो सकता है, 20 into 15, वो हमारा लॉस हो सकता है। हाँ, स्टॉप लॉस इंक्रीज हुआ है ना, देखिए स्टॉप लॉस पहले 670 था, इट वेंट टू 690, नाउ इट इज 709। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अभी एक्चुअली अगर लॉस भी होगा तो इट विल बी हार्डली सम 20 रुपीज का हिसाब से कितना होगा, 150, 300 रुपीज का लॉस होगा। अगर होता है तो लॉस होगा। अगर आपको एग्जिट करना है तो आप एग्जिट भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू, आपके हिसाब से है। As I said, I am leaving everything for the software to do. मैं इंटरफियर नहीं करूंगा। देखो अगर हम इंटरफियर किए होते तो शायद हम वहां पर लॉस में निकल गए होते, है ना। बहुत बार यही होता है, वी ट्राई टू टेक अ डिसीजन मेनी टाइम्स, हम ठीक डिसीजन नहीं ले पाते हैं। देखो यहाँ से फिर से लॉस आ रहा है नीचे जा रहा है, तो दैट विल हैपन। बट अगर आपको लगता है कि देखो, अगर मेरे हिसाब से देखोगे तो अगर इतना प्रॉफिट आ गया तो मैं तो निकल गया होता, क्योंकि मेरा तो व्यू मार्केट के प्रति इट इज ऑन द नेगेटिव साइड ओनली। बट फिर भी ठीक है, मार्केट तो मार्केट है। हाँ, इट विल एग्जिट ओनली व्हेन द टीएसएल विल हिट। देखो बाकी पुट में कुछ नहीं हो रहा है, पुट में लॉस भी नहीं हो रहा है, लॉस बढ़ नहीं रहा है। तो यहाँ पर कुछ तो डिफरेंट चीज हो रही है। हो सकता है इट विल, दे विल कीप द मार्केट अप एंड लेटर दे मे ट्राई टू टेक द मार्केट डाउन। देख लेते हैं क्या हो रहा है। गाइज ये मीटिंग शायद थोड़ी देर में बंद होगा, बिकॉज ना जूम लाइसेंस रिन्यू नहीं किया था।
तो यहाँ पर वी मे हैव टू एग्जिट वंस। देखो यहाँ पर बैंक निफ्टी तो ऊपर ही जा रहा है, तो अभी टाइमिंग हमारे लिए 10:45 है। तो शायद वहां पर हमको एग्जिट लेना है तो ले सकते हैं, या यहाँ कहीं पर भी वी कैन प्रोबेबली लुक एट इट। खाली बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर है, निफ्टी नीचे आ रहा है। ठीक है, जो भी है, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। हम खाली जो सॉफ्टवेयर करेगा उसी पर डिपेंड करेंगे। नहीं, इसको लाइव रखता हूँ, लेट इट रन। यू जस्ट हैव टू रिकनेक्ट अगेन। फिर से रिकनेक्ट कर लीजिए सेम आईडी पर। ये बंद होगा तो बाद में फिर से हम इसी आईडी पर फिर से कनेक्ट हो जाएंगे। देखो ये ऊपर नीचे सब कुछ करेगा, बट यू डोंट हैव टू वरी क्योंकि यू आर नॉट टेकिंग डिसीजंस। द बिगेस्ट प्रॉब्लम यही होता है ना, हम एक्चुअली हमेशा डिसीजन खुद लेते हैं और वहां पर ही हमको प्रॉब्लम आती है। बिकॉज वी आर नॉट एबल टू टेक द राइट डिसीजन। अब देखो लॉस भी हो रहा है तो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा, इट इज राइट नाउ अ लिटिल साइडवेज ओनली। इतना खास कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। बट मैंने एक गड़बड़ किया है यहाँ पर। यहाँ पर कॉपी पेस्ट के बदले कट पेस्ट हो गया। ठीक है, बट ये तो एग्जिट हो चुका है। वी आर नॉट रेडी टू री एंट्री। ये फाइनेंस निफ्टी का है ना, फाइनेंस निफ्टी कहाँ पर है? 10:45 का लिए ही है, प्रोबेबली वहां पर हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 60 RSI पर है, सपोर्ट लेगा या resist, या यहाँ पर तोड़ देगा, पता नहीं है ना। प्रॉब्लम यही होता है। तो आपको जब भी यहाँ पर चैलेंज होगी, दैट इज द टाइम यू कैन लीव द सॉफ्टवेयर टू डिसाइड। व्हेन यू वांट यू कैन एनेबल इट।
आप देख सकते हो कि मिड कैप निफ्टी में कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत ही लिमिटेड चीजें हो रही है यहाँ पर। ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए फाइनेंस निफ्टी में भी खास कुछ नहीं हो रहा है, दोनों प्रॉफिट में है, आप देख सकते हो। ये तो निकल चुका है, क्लोज हो चुका है, ये क्लोज नहीं हुआ है। And हमारा स्टॉप लॉस 227 पर है, तो बहुत ज्यादा ही नीचे है। अगर आपको निकलना है तो यहाँ से निकल भी सकते हैं। देखो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। कैन बी लेट ओनली, हाँ हाँ, विच एवर यू वांट टू डू ओनली यू कैन एनेबल दैट, इट इज नॉट नेसेसरी आपको सब कुछ करना है। रन तो सब कुछ कर रहा है। यू कैन चेंज दिस, आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये इट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम थिंग नो। अभी मैंने चेंज भी किया था, बिकॉज कल के हिसाब से मैंने यहाँ पर 43,500 के डाल के रखा था, बट वो नहीं था ना, थोड़ा ऊपर भी गया है, तो मैंने इसको चेंज भी किया है। यू मे हैव टू चेंज इट, क्योंकि मार्केट देखो यहाँ पर आपको एनेबल करना है तो एनेबल उसी को करना है, क्वांटिटी जिसमें डालोगे वो वही एनेबल होगा। अगर आप रियल ट्रेड भी करोगे ना, यहाँ पर अभी तो पेपर ट्रेड एनेबल है, देखो इसको हम रियल भी कर सकते हैं। यहाँ पर रियल कर देंगे ना, इट विल गेट, इट इज ऑलरेडी अटैच टू अवर माई जीरो द अकाउंट, वही से एक्चुअली वो सारा डेटा निकाल रहा है। एंड लाइव अपडेट इसीलिए हो रहा है। रियल एनेबल कर दूंगा तो इमीडिएटली वो ट्रेड भी कर लेगा, अपने आप कर लेगा। देखो यहाँ पर लॉस है, बट लॉस बढ़ नहीं रहा है। कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग? लॉस बढ़ नहीं रहा है, तो देर इज अ ट्रिकी सिचुएशन अभी यहाँ पर जो हो रहा है। वरना आप देखोगे तो लॉस जो होता है, लॉस बढ़ता रहता है।